Hello friends, welcome to Success Samrat classes. Our, Today we will start with geography, and our first chapter of geography is going to be our universe, yeah, the universe. Now, before starting the chapter, the universe, there's a word called geography. It's a word called geography. Now, what is this geography means? देखो geography का मतलब क्या हुआ? हिंदी में इसको हम भूगोल बोलते हैं. Geography का मतलब ये हुआ. The word geography here, the word geography is a combination of two Greek words. One is geo, and second is graphos. The word geo means earth, and graphos mean description. So as a whole, we can say geography means the study of earth, or we can say the description of earth. Therefore, geography also means that to write about the earth, including including all that appears upon it. अर्थ पे जो कुछ भी उसके ऊपर है, उसकी क्रस्ट पे जो चीज अवेलेबल है, उन सब की स्टडी को हम ज्योग्राफी में करते हैं. बट क्वेश्चन ये आता है कि ये टर्म सबसे पहले दिया किसने था? हु कॉइन्ड द टर्म ज्योग्राफी? नाउ Eratosthenes in 276 to 194 BC first coined the term geography. It is about in 234 BC. Some geographers considered him to be as father of geography. So now, what is the ideal definition of geography? Geography is primarily concerned with study of Earth's surface with all forms of life, including human life and human activities which takes place on the earth. It means ओवरऑल अर्थ के ऊपर जो भी एक्टिविटी होती है अर्थ क्रस्ट पे या अर्थ सरफेस पे, उन सब की स्टडी को हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं. अब आता है क्वेश्चन कि there are several other scientists and geographers who have given different definitions of geography. The first definition was given by L.D. Slamp. He said the description of Earth as the abode of human beings. Second definition was given by Richard Hartshorne. It was the geography is concerned with the description and explanation of aerial differentiation of the earth surface. And the third definition was given by Alfred Hattner. It was geography studies the difference of phenomena causally related in the parts of the earth surface. तो हम इन तीनों डेफिनेशन को एक साथ देखें तो ये एक कॉमन चीज बता रही है, स्टडी एंड डिस्क्राइब. जो अर्थ पे जो भी चीजें अवेलेबल हैं उनके बारे में स्टडी करना और फिर उनको डिस्क्राइब करना, दिस कम्स अंडर ज्योग्राफी. सो अगर हम लेमन टर्म से बैठे तो जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं अर्थ के ऊपर वो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं. नाउ व्हाट आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी? The different branches of geography, or we can say geography can be further divided into three categories. These categories are: first is physical, second is human geography, and third is biogeography. Now, physical geography में कौन-कौन सी branches आती हैं? The physical geography included branches like geomorphology, climatology, hydrology, and soil geography. Now, what is geomorphology? The study of landforms such as continents, mountains, plateau, plains, river valley, and other physical features of the earth, the other features on the earth is called as geomorphology. Geomorphology में ओवरऑल हम अर्थ के जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं. सेकंड कम्स क्लाइमेटोलॉजी. इन फिजिकल ज्योग्राफी व्हाट इज क्लाइमेटोलॉजी? हम क्लाइमेट के कंपोनेंट्स क्या हुआ? टेम्परेचर हुआ, ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ, विंड्स हुआ, एटमॉस्फेयर हुआ,
स्टॉर्म्स हुए, इन सब की स्टडी को हम एक ज्योग्राफी की ब्रांच में स्टडी करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी। नेक्स्ट हाइड्रोलॉजी, हाइड्रो मीन्स वाटर, तो जो भी स्टडी ऑफ वाटर की होगी, चाहे वो ओशंस की हो, चाहे रिवर्स की हो, या वाटर साइकिल हो, इवन ग्लेशियर्स हो, रेनफॉल्स हो, इन सब की पैटर्न को कैसे हैं, इन सबको हम स्टडी करते हैं क्लाइमेटोलॉजी। एंड व्हाट इज सॉइल जियोग्राफी? सॉइल जियोग्राफी इज कंसर्न विद द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, इसको हम पेडोलॉजी भी बोलते हैं। कैसे सॉइल बनती है, उसमें कितनी लेयर्स होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, और कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ कहाँ क्लासिफिकेशन है, हम उसको हम सॉइल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो जो ज्योग्राफी की जो 3 ब्रांचेस है, उसमें सबसे पहली ब्रांच है फिजिकल ज्योग्राफी, सेकेंड इज ह्यूमन ज्योग्राफी, एंड थर्ड इज बायो ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी की 4 ब्रांचेस हो गई, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड बायो soil geography. In geomorphology, we study about physical features. In climatology, we study about climate and its factors. In hydrology, we study about water. And in soil geography, we study about formation of soil and their types, even its distribution. Now, next comes human geography. Human geography is a study of culture made by man. ओके अब इसमें कौन कौन सी इसकी सब ब्रांचेस होंगी? पहला होगा कल्चरल, सेकंड होगा पॉपुलेशन, थर्ड होगा सोशल, फोर्थ होगा अर्बन, फिफ्थ होगा रूरल, सिक्स्थ होगा इकोनॉमिक, सेवेंथ होगा एग्रीकल्चर, एट्थ होगा इंडस्ट्रियल, नाइन्थ होगा पॉलिटिकल एंड टेंथ होगा ट्रांसपोर्ट। इस समय ओवरऑल जो ह्यूमन एक्टिविटीज परफॉर्म करता है एक सोसाइटी में रहते हुए, उन सब को हम ह्यूमन ज्योग्राफी के इन कैटेगरीज में पढ़ते हैं। नाउ terms come, now third category of geography is biogeography. Biogeography में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का एंड फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन को पढ़ते हैं। इसके 4 कैटेगरीज होती हैं, इसकी 4 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट इज प्लांट जियोग्राफी, इसमें हम प्लांट और उसके सराउंडिंग के बारे में स्टडी करते हैं। सेकंड एनिमल जियोग्राफी, एनिमल कहाँ उसकी लोकेशन है, कैसा रह रहा है उसके बारे में। ह्यूमन इकोलॉजी, ह्यूमन का नेचर से क्या रिलेशन है। एंड थर्ड एनवायरमेंटल बायोलॉजी, पूरे एक एरिया की कैसे उसमें प्लांट्स लगे हुए हैं, कैसे उसमें वेदरी कंडीशंस हैं, क्या उसकी फिजिकल फीचर्स हैं, उन सबको हम एनवायरमेंटल जियोग्राफी में पढ़ते हैं। नाउ हमारा टॉपिक है यूनिवर्स। यूनिवर्स बेसिकली होता क्या है? व्हेन वी लुक अप टू द स्काई, हम एक इंफिनिटी तक देख सकते हैं। वो जो इंफिनिटी स्काई रात को दिखाई देता है तारों से भरा हुआ, जिसके अंदर सारी हेवनली बॉडीज हैं, सन है, मून है, उसको हम यूनिवर्स कहते हैं। इट इज लिमिटलेस, इंफिनिटी है, इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्स। तो काफी समय से लोग यूनिवर्स की वेरियस फॉर्म्स को स्टडी करते आ रहे थे। तो सबसे पहले जो स्टडी की थी वो रोमन्स ने की थी। रोमन्स में एक एस्ट्रोलॉजर हुआ करते थे, वो मैथमेटिशियन भी थे, क्लैडियस प्लाटोमी। प्लाटोमी ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया द जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थ। नाउ व्हाट इज जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट? इसमें सीधा सा फंडा ये था, अकॉर्डिंग टू प्लाटोमी, दैट अर्थ इज लोकेटेड एट द सेंटर एंड ऑल द celestial bodies या heavenly bodies are revolving around it. इसका मतलब ये हुआ, प्लॉटोनी ने ये कहा कि जो हमारी अर्थ है जिसमें हम रहते हैं वो बीच में है, उसके आसपास सारी की सारी हेवनली बॉडीज चल रही हैं। इट इज जियो कंसेप्ट, जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट वाज इन वोक फॉर वेरी लॉन्ग टाइम until unless it was challenged by Copernicus. Copernicus ने फिर एक अपना कॉन्सेप्ट दिया जिसको वो बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट जस्ट इसका अपोजिट था। इस कॉन्सेप्ट में ये कहा गया कि सन जो है वो सेंटर पे है, बाकी जितनी हेवनली बॉडीज हैं वो उसके आसपास घूम रही हैं। इसका मतलब ये हुआ, इन्होंने उस पूरे कॉन्सेप्ट को ही चेंज कर दिया। व्हाट इज जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट? जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय प्लॉटोमी। according to it, the earth is located at the center, the earth is positioned at the center, and all the celestial bodies or heavenly bodies are revolving around it. Whereas in whereas in heliocentric concept that was given by Copernicus, according to this concept, sun is at the center and all the heavenly bodies are revolving
around it. इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे में लिखा हुआ है जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट. इट इज जियोसेंट्रिक. जियो मीन्स अर्थ, अर्थ और सेंट्रिक अर्थ सेंटर में है. सिमिलरली हियर इट इज हेलियोसेंट्रिक, मतलब हेलियो मीन्स होता है सन, यानी कि सन सेंटर में है. ये दो कॉन्सेप्ट है. नाउ देयर आर वेरियस थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. पहली थ्योरी दी थी, वो दी थी जॉर्ज ई बटन ने. जॉर्ज बटन ने थ्योरी दी थी कोलिजन की. सेकंड थ्योरी वाज गिवन बाय एम्यूल कांट. एम्यूल कांट ने थ्योरी ऑफ गैसियस मास दी थी. थर्ड थ्योरी दी थी लैप्लास ने. उनकी थ्योरी नेबुलर थ्योरी पे बेसिस थी. उसके बाद आए चैम्बरलिन और माउंटेन. उन्होंने प्लैनेटिसिमिलस हाइपोथेसिस दिया था. देन केम जीन एंड जेफरी, जिन्होंने टाइडल हाइपोथेसिस दिया. उसके बाद ऑटो स्कैटबिट आए, इन्होंने इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस दिया. उसके बाद आए रसल लिटलटन, इन्होंने बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस दिया. फिर अगेन हॉयल के साथ कॉम्बिनेशन बना लिटलटन ने, इन्होंने दिया नोवा हाइपोथेसिस. उसके बाद आए बेल्जियन एस्ट्रोनॉमर ई जॉर्ज लेमेंटर, जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी दिया. उसके बाद आए थॉमस गोल्ड, हर्मन बॉन्डी एंड फ्रेड हॉयल, जिन्होंने स्टेडी स्टेट थ्योरी दिया. और फिर आए डॉक्टर एलन सैंडीज, जिन्होंने पल्सेटिंग थ्योरी ऑफ यूनिवर्स दिया. अब इन 11 थ्योरीज में से हमें सिर्फ और सिर्फ 3 याद रखनी है. these 3 are the Big Bang theory by George E. Lamenter. Second is the steady state theory by Thomas Gold, Herman Bondi and Fred Hoyle. And the third is the pulsating theory of universe by Dr. Alan Sundis. जो pulsating theory of universe है, ये कोरिलरी भी है बिग बैंग थ्योरी के. नाउ अब हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी. देखो बिग बैंग थ्योरी जो दी थी वो एक बेल्जियम एस्ट्रोनॉमर थे, जिनका नाम था ई जॉर्ज लेमेंटर. द बिग बैंग थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय ई जॉर्ज लेमेंटर. उन्होंने ये कहा था कि आज से 10 से 15 बिलियन साल पहले की बात बताई. उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी हेवीली बॉडी थी और वो हैवी मैटर से मिलके बनी हुई थी. उसके अंदर अचानक से कोई बम फूटा और सारे हैवी मेटल्स निकल के बाहर आ गए. अब ये जब ये हैवी मेटल बाहर निकल के आए तो इन्होंने क्या किया, छोटे छोटे अलग अलग हेवीली बॉडीज बना लिए. अब इन बॉडीज के आसपास फिर से नॉर्मल मैटर एग्रीगेट होगा, आके जुड़ने लगा. इससे क्या हुआ, इसका साइज बढ़ने लगा. जो साइज बढ़ने लगा, उस साइज के बढ़ने के बाद गैलेक्सीज एग्जिस्टेंस में आई. इसी प्रोसेस से स्टार्स भी बने और फिर जब फेज पर ये एक्सप्लोजन हुआ तो गैलेक्सीज बनी और लेटर ऑन प्लैनेट्स भी बन गए. तो बेसिकली अगर इसको ऐसे समझे कि हम एक बर्फ की बड़ी ब्रिक लें और उसको अगर तेज से मारें तो वो ब्रिक्स अलग अलग डिजाइन में टूट जाती है, अलग अलग छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती है. तो वो हमारा जो बर्फ का पूरी ब्रिक थी बड़ी वाली, वो एक हैवी पार्टिकल हुआ और जब वो टूटा उसके अंदर छोटे छोटे नॉर्मल पार्टिकल्स निकले. अब आपने उन पार्टिकल्स को फिर से उठाकर बर्फ में जोड़ के फ्रिज में रख दिया तो वो सारे पार्टिकल्स आके जुड़ गए और वो फिर से एक बर्फ बन गई. तो ऐसे उसमें क्या हुआ कि जब वो हैवीली बॉडी फटी उसके बाद सारे पार्टिकल्स वापस आके उससे जुड़े और जमा हो गए. तो एक और हमारे पास बर्फ तैयार होगी, वैसे की हैवीली बॉडी तैयार हो गई. फिर उसमें फिर एक्सप्लोजन हुआ, हमने उसको फिर तोड़ दिया तो वापस फिर उसी पोजीशन में आ गई. तो वो जब हम तोड़ रहे थे उसमें जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स निकल रहे थे, उन्होंने अलग अलग हैवीली बॉडीज को बनाया. और ये बार बार एडिशन और जो डिवीजन होता रहा, इससे नई नई गैलेक्सीज बनी और नए नए धीरे धीरे से फिर स्टार्स बनने शुरू हुए और फिर प्लैनेट्स बनना शुरू हुए. तो ओवरऑल दिस इज कॉल्ड एज बिग बैंग थ्योरी. तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लें तो द बिग बैंग थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय अ बेल्जियन एस्ट्रोनॉमर ई जॉर्ज लेमेंटर. अकॉर्डिंग टू हिम about 10 to 15 billion years ago there was a big heavenly body made up of heavy matters, and due to sudden explosion of this heavenly body, normal matters came out of it, and many celestial bodies were created. As a result of aggregation of these matter, gradually their size increased, and the continuous accumulation of normal matter around them, and there was continuous
accumulation of matter around them. In this way, galaxies were created. Later, stars were formed due to re-explosion of these galaxies. In the due course of, other planets were also formed by the same process. तो अगर इसको फिर से मैं ब्रीफिंग दूं तो सिंपल सा फंडा है कि एक बर्फ की बहुत बड़ी सिली थी या ब्रिक थी, उस पर आपने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड किया, वो एक्सटर्नल प्रेशर से टूट गई और फिर आपने उसको उठा के फिर से जोड़ दिया. सिमिलर वे उसमें कहा कि एक बहुत बड़ी हैवीली बॉडी थी जो हैवी मेटल्स की बनी हुई थी, उसमें एक सडन एक्सप्लोजन हुआ, उस एक्सप्लोजन के होने के बाद छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट गई. जब जब हमने बर्फ को तोड़ा था तो उसमें छोटे छोटे पीसेस निकले थे, उससे अलग अलग सेलेस्टियल बॉडीज बन गई. उनके अंदर भी मैटर था, उस मैटर था. अब क्या वो धीरे धीरे हमने उसको उठाया और जोड़ दिया, तो किसी एक्सटर्नल फैक्टर से वो सारे मैटर आगे फिर एक जगह एग्रीगेट हो गया, उसके अंदर से फिर से एक्सप्लोजन हुआ, तो ऐसे गैलेक्सीज बनी. इसके बाद गैलेक्सीज बनने के बाद ऐसे एक्सप्लोजन से स्टार्स बने और स्टार्स बनने के बाद कुछ समय बाद प्लैनेट्स बने. इट इज ऑल अबाउट द बिग बैंग theory. Now second comes the steady state theory. The steady state theory was proposed by Thomas Gold, Hermann Bondi and Fred Hoyle. ठीक है, steady state theory में है क्या? Basically जो steady state theory ये कहती है, जहां तक हम देख सकते हैं उसको हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं. अब सेम टाइम पे यहाँ पे एक यूनिवर्स, एक गैलेक्सी बाहर जाती है और एक गैलेक्सी क्रिएट होती है. सो व्हाट हैपेंस, तो हमें ये लगता है कि गैलेक्सी कभी खत्म हुई ही नहीं. वो क्योंकि जब कोई चीज क्रिएट हो रही है और उसके साथ ही साथ उसके साथ कोई चीज डिस्ट्रॉय हो रही है या उसके दूसरी चीज क्रिएट हो रही है, तो वो जो गैप बनता है वो गैप फिल हो जाता है. उस गैप को फिल हो जाने के बाद एक स्टेबिलिटी बनी रहती है. जब स्टेबिलिटी बनी रहती है उसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी. सो the standard statement for this theory is there are number of galaxies in observable universe. Observable universe वो होता है जो हमें नॉर्मल दिखाई देता है, is constant. उस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी क्या बोलते हैं जो गैलेक्सीज हैं वो कांस्टेंट नंबर में है. दैट मींस न्यू गैलेक्सीज आर क्रिएटेड एंड दे रिप्लेस ओल्ड वंस. अभी ओल्ड वंस को रिप्लेस क्यों कैसे करती हैं? जब ये ओल्ड वंस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के से जो हमें दिखता है उससे बाहर चली जाती हैं, तो ये उसकी जगह को ऑक्युपाई कर लेती हैं. सो दे रिप्लेस ओल्ड वन continuously and they fill up the gaps created by the galaxies which have gone across the observable universe. Therefore, the overall size of the universe remains constant. तो सीधे से फंडा ये है कि जैसे कि आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें आधा पी लिया और फिर दोबारा से उसको लाके पानी भर दिया तो वो गिलास फुल हो गया, तो उसका जो वॉल्यूम था वो मेंटेन रहा. उसी तरीके से यूनिवर्स में एक ही समय पे एक गैलेक्सी बाहर निकल जाती है और दूसरी गैलेक्सी आकर के उस जगह पे आ जाती है. तो वो जो स्पेस क्रिएट होता है, वैकेंट स्पेस क्रिएट होता है, वो उसको फिल कर देती है. इससे यूनिवर्स की या गैलेक्सी की स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है. इसे बोलते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी. अब थर्ड जो थ्योरी है वो है पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी. इट वाज प्रपोज्ड बाय डॉक्टर एलन सैंडेज. ये थ्योरी जो है ये कोलरली होती है बिग बैंग थ्योरी की. इसमें ये बात करता है कि यूनिवर्स पहले कुछ समय तक एक्सपेंड करता है और फिर कुछ समय बाद कॉन्ट्रैक्ट करता है. यही पूरी पल्सेटिंग थ्योरी होती है. और उसके बाद क्या होगा, फिर कुछ समय तक कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिर से वो एक्सपेंड करने लगेगा. सो दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स गेव इट अ पल्सेटिंग नेचर. तो इसको हमने पल्सेटिंग थ्योरी ऐसे इसका नाम पड़ा. सो नाउ व्हाट इज द पल्सेटिंग थ्योरी? This theory was proposed by Dr. Alan Sundis. According to this theory, the universe expand and contract alternately. That is, it is pulsating in nature. Now, according to him, presently the universe is expanding. अभी universe है वो फैल रहा है, expand कर रहा है. Therefore, the theory says the universe will expand to a certain time. The universe जो है वो कुछ समय तक expand करता रहेगा. फिर ऐसा point आएगा जहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्शन रुक जाएगा. So according to theory, therefore the theory says that the universe will expand to a certain limit or point
When it stop expanding, it will start contracting under the gravitational pull. अब उससे क्या होगा, पहले एक्सपेंड करता रहा, सर्टेन लिमिट तक एक्सपेंड होगा, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगा अंडर ग्रेविटेशनल पुल. आफ्टर, और फिर जब ये कुछ समय तक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उस समय कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद फिर से एक्सप्लोर करेगा और एक्सपेंड करना करेगा. ये जो अल्टरनेट एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसको हम पल्सेटिंग नेचर बोलते हैं ऑफ यूनिवर्स. सो वी विल अगेन गो बाय द standard statement. According to this theory, the universe expands and contracts alternately. That is, it is pulsating in nature. At present, the universe is expanding, and therefore, the theory says that the universe will expand to a certain limit. When it stops expanding, it will start contracting under the gravitational pull. After contracting to a certain size or limit, it will explode again and will start expanding. This alternating contraction and expansion give the universe a pulsating nature. So, friends, we have to just remember these three theories. And thank you for today.